May I come in, sir? Yes. Please, Good evening, sir. please sit down. Manish Kumar, Yes, sir. you are LLM Yes, sir. from which university? Central University of South Bihar. Okay, and what was your topic of dissertation? Sir, prevention of corporate crimes. Corporate. Special reference with the SEBI. Okay, and what was your optional subject in the mains examination? Sir, family law, transfer of property act, and commercial law. Can the civil court may enlarge the time? May extend the time? Yes, sir. How much? Sir, 60 days. 60 days. Are you sure? Yes, sir. Okay. If an ex parte decree is passed, so what remedies you are avail? Sir, after the ex parte decree has been passed, then the remedies are in Order 9, Rule 13, and first remedy. Second, he can file an revision in the court and make application under Order 9, Rule 13. Revision की appeal. Every degree is appealable. Sir, if appeal has not been filed, then we can file a revision petition. Both appeal and revision both may file. No, sir. If appeal has not been filed or appeal has been dismissed, then he can file a revision petition. If there is a provision of appeal, then order is not revisable or the decree is not revisable. Sir, दोनों में से एक ही हो सकता है. दोनों में से एक हो सकता है. रिवीजन तभी होता है जब अपील का प्रोविजन नहीं होता. If there is no provision, there is no statutory provision of the appeal. अच्छा, appeal is a statutory right. जी सर. Is clear? Whether the revision is also a statutory right? Sir, appeal is a statutory right, but sir, revision, it may also be a statutory right, sir. Okay. आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा रिसर्च मेथडोलॉजी जी सर. LLM में. जी सर. ठीक है. हाइपोथेसिस क्या होता है? Sir, hypothesis is a tentative solution of the research problem which has been made by the researcher. ठीक है. उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आप डाटा कलेक्ट करते हैं. जी सर. तो हाउ मेनी टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड्स? Sir, data collection method may be secondary data or primary data collection. ठीक है. प्राइमरी में कौन कौन से आएंगे? प्राइमरी में होगा सर जो ये एग्जिस्टिंग डेटा है, सोर्सेस है, उससे उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं. और सेकेंडरी जो कि प्राइमरी डेटा से लिया गया है उसको सर सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल. ठीक है. वन मोर क्वेश्चन. पंचशील के प्रिंसिपल्स आपने पढ़े होंगे रिगार्डिंग दी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, in which case they are propounded by the Honorable Supreme Court. Sorry sir, I am unable to recall this case. Sir, I have gone through this, but sorry to recall this. कोई सर प्लीज हम पूछिए. Manish, can a man commit theft of his own goods? Yes sir, in a certain circumstances अगर उसका अपना सामान किसी. Is there any example? Yes sir. Sir, can I give in Hindi? Okay. सर, अगर किसी कोई आदमी है और अपना वो कपड़ा किसी को दिया है स्टिच करने के लिए, और स्टिच करने के लिए अगर दिया है तो उसने अगर पेमेंट नहीं किया और उससे बिना पूछे और उसको बिना पेमेंट किए अगर वहाँ से ले लेता है तो वो अमाउंट टू थेफ्ट हो जाता है. तो ये बताइए, आपके और जो आपने कपड़ा स्टिच करने को दिया शॉपकीपर, आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है? सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो जाता है वहाँ. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. कैन यू डिफाइन बेलमेंट? सर, बेलमेंट, सर, if contract between the two party in which one party has given certain goods to the other. Sir, sorry sir, I am not recalling. Okay. And what are the essential elements of theft? Sir, essential element of theft is first of all the subject matter of property is movable property, and without the consent of the other party the such goods to be taken away. And और एक सर विदाउट कंसेंट हो गया और इमूवेबल प्रॉपर्टी. इंटेंशन कैसा होगा? सर, रॉन्गफुल इंटेंशन जरूरी. डिसऑनेस्ट इंटेंशन सर, आउट ऑफ पोजीशन. Okay.
Which properties cannot be attached in the execution of decree? Give me 4 examples. सर फर्स्ट एग्जांपल वुड बी लाइक राइट टू मेंटेनेंस, अगर ऐसा वो नहीं हो पाएगा, अगर उसका कोई पर्सनल आर्टिफैक्ट्स है, वेसल्स हैं, खाना बनाने की चीज़ें, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, सो इट कैन नॉट बी अटैच्ड। अच्छा ये बताइए, यदि आप मजिस्ट्रेट बनते हैं और आपका उस समय जब आप मजिस्ट्रेट एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, आपका खुद का कंडक्ट या ऐसे मजिस्ट्रेट होने के नाते कोई नॉलेज आपके माइंड में आई है, क्या इस बात को डिस्क्लोज करने के लिए क्या आपको कंपेल किया जा सकता है या कोई कोर्ट आपको कंपेल कर सकती है? सर अगर फैक्ट अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगर पता चलता है तो इन सर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मजिस्ट्रेट को कंपेल किया जा सकता है बताने के लिए। कंपेल किया जा सकता है। अगर उसके प्रेजेंस में अगर कोई एक्ट कमिट हुआ हो तो सर वो बताने के लिए उसको कंपेल किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका खुद के कंडक्ट के बारे में यदि पूछा जाए, आपको जिस समय आप एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और कोई कोर्ट आपको कंपेल कर रही है आपके कंडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो क्या कोई कोर्ट आपको कंपेल कर सकती है? सॉरी सर, ओके, मनीष ये बताइए, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड प्रिविलेज में क्या बेसिक डिफरेंस आपको नजर आता है? सर एब्सोल्यूट प्रिविलेज व्हिच हैज बीन गिवन इन सेक्शन आर्टिकल 105 ऑफ द पार्लियामेंट 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सर उसमें एब्सोल्यूट प्रिविलेज का जो बात किया गया है कि जो पार्लियामेंटेरियन है, लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन पार्लियामेंट के, तो उनको प्रिविलेज दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू दी प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। और सर क्वालिफाइड प्रिविलेज का सर मतलब ये हो सकता है कि अगर उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस हो, कुछ अगर कोई कंडीशंस हो, उस समय में उसको कह सकते हैं कि ये क्वालिफाइड प्रिविलेज है। ओके, टॉर्टियस लायबिलिटी से आप क्या समझते हैं? सर टॉर्टियस लायबिलिटी का मतलब सर ये हो सकता है कि अगर टॉर्ट्स के कमिट होने के बाद से जो लायबिलिटी राइज होती है तो उसको टॉर्टियस लायबिलिटी कह सकते हैं। हॉस्टाइल विटनेस? सर हॉस्टाइल विटनेसेस का मतलब सर ये है कि विटनेसेस गोज अगेंस्ट द पर्सन हु हैज़ कॉल्ड फॉर, तो अगर कोई पार्टी अगर उसको विटनेस लाइक अगर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को अगर प्रोसिक्यूशन बुलाता है, अगर वो प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट चला जाता है तो सर उसको हॉस्टाइल विटनेस बोलते हैं। सीआरपीसी में एक धारा है 144, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सर 144 का सर बेसिक ऑब्जेक्ट है टू कंपेल द न्यूसेंस व्हिच इन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लेसेस। 144 में मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि जो न्यूसेंस क्रिएट हुआ है किसी पार्ट है किसी जिला में, तो उसको कंपेल करने के लिए 144 का ऑर्डर दिया जा सकता है। चलिए, एक एक्ट आपका है दैट इज कॉल्ड पॉक्सो, जी सर। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ। चलिए आप ये बताइए, इस एक्ट के अंदर बच्चों के प्रोटेक्शन की बात की गई है, तो जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगा या दोनों होंगे, या उनकी उम्र क्या होगी मिनिमम? सर पॉक्सो ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉक्सो एक्ट डील्स विद द बोथ द जेंडर, इट्स अ जेंडर न्यूट्रल लॉ है, और इसमें जो सर चाइल्ड का जो एज बताया गया, चाइल्ड का जो डेफिनेशन है इस एक्ट में बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है, शुक्रिया सर। मनीष जी, आपका रोल नंबर क्या है? 100668। LLM कब किया आपने? सर 2021। 2021 और अब तक? सर मैंने उसके बाद से सर आई हैड टॉट एज ए गेस्ट फैकल्टी इन कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। तो फिर जज क्यों बनना चाहते हैं? सर आई हैड ज्वाइन द CLC ओनली बिकॉज ऑफ माई एडिंग इन माई प्रिपरेशन की कुछ मुझे हेल्प मिल जाए। सर आफ्टर पासिंग माई लॉ आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, ऑल्दो academics is a very honorable profession, but I want to join judiciary because impartiality and integrity of judiciary which ओके। अच्छा ये बताइए, आप ये मानते हैं कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, आप इस बात को मानते हैं? सर केसेस की पेंडेंसी है बिकॉज उसका सर्टेन रीज़न है कि उसकी पेंडेंसी कोर्ट में न क्यों ज़्यादा है। अच्छा, अगर कोर्ट्स में अपील को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, सारे अपील के प्रोविज़न ख़त्म कर दिया जाए,
और इंस्टेंट जजमेंट हो जाएंगे फिर तो सारे। तो आप इस पे क्या कहेंगे, यदि अपील के प्रोविज़न को ख़त्म कर दें तो पेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी काफ़ी हद तक? नहीं सर, अगर अपील की प्रोविज़न ख़त्म कर दें जाए तो सर ऐसे नहीं कि पेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। और पेंडेंसी ख़त्म करने का सर मतलब ये नहीं है कि जो राइट टू अपील जो मिला हुआ है एग्रीड पार्टी को उसको ही ख़त्म कर दें। तो ये कौन से आर्टिकल में है? राइट टू अपील। यस, इस पर कोई जजमेंट बताएंगे आप? सर सॉरी सर, दिस टाइम अनएबल टू रिकलेक्ट इस पर कोई बेसिक जजमेंट है, बट सेक्शन 124 टू सम एक्सटेंट उसमें सर सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस दिया, उसमें राइट टू अपील है। ओके, वन नेशन वन इलेक्शन जी आजकल काफ़ी चर्चाओं में है, क्या ओपिनियन है आपका इस पर? सर, साइमल्टेनियस इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के रिसेंटली एक कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है। और सर इस पे यही है कि सर वन नेशन वन इलेक्शन होना भी चाहिए इंडिया में, क्योंकि सर इससे इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी सारे रेवेन्यू लॉसेस होते हैं। आई थिंक सर हर आफ्टर 6 मंथ आवर कंट्री इज फेसिंग इलेक्शन। रिसेंटली अभी सर मई 2024 में एक चुनाव हुआ, फिर अभी सर ओके, आपके नज़र में आप कोई 2 नुकसान बताइए अगर वन नेशन वन इलेक्शन इन्फोर्स हो जाता है इंडिया में, तो 2 लॉस क्या होंगे? सर पहला सर लॉस नहीं कर सकते हैं एग्जैक्ट, लेकिन सर ऐसे कह सकते हैं कि जो राइट को जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का सर कहीं ना कहीं सर उस पर एक थोड़ा सा सर हो सकता है कि उस पर। एंड सेकंड वन? सर सेकेंड वन हो सकता है कि सर अगर कोई एक पार्टी जो मेजोरिटी में है, लाइक उसका फुल मेजोरिटी मिला हुआ है सेंटर में, तो कहीं ना कहीं वो सर एक तरह से मिसलीडिंग हो सकता है सर कुछ सम एक्सटेंट की वोटर को मिसलीड करके। बिहार के सीवान डिस्ट्रिक्ट से हैं आई थिंक आप। जी सर। सीवान किस लिए जाना चाहते हैं? सर सीवान जाना जाता है सर, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ से सर हम सीवान से थे, जीरादेई सीवान। उनकी कोई बुक बताइए। सर उनकी बुक सर फेमस बुक है। ओके, आपकी हॉबीज़ है प्लेइंग क्रिकेट एंड कुकिंग। मान लीजिए हमें भूख लग रही है अभी बहुत, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, क्या बना के खिलाओगे? सर 5 मिनट में सर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऑब्वियसली बात है सर आप पनीर खाना पसंद करेंगे, तो विद इन 5 मिनट सर मैं पनीर भुर्जी सर बना सकता हूँ आपके लिए। ओके, क्रिकेट में ये बताइए मुझे IPL क्या होता है? सर एक इंडियन प्रीमियर लीग होता है, इसमें बहुत सारी टीमें हिस्सा लेती हैं, और वो टीमें जो होती है जो काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं उनको चुन के एक टीम बनाती है, और एक क्रिकेट लीग है। बिहार का कोई ऐसा प्लेयर है जो नेशनल टीम में खेला हो? सर बहुत सारे नहीं, 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो नेशनल टीम में खेले हैं। पहला सर पटना ज़िला से ही हैं। नाम बताइए। सॉरी सर मैं नाम उनका ही भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, प्लीज़ सर। आपने अभी बताया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर के रूप में लेक्चरर सर थे। क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे? सर उसमें मेरा फैमिली लॉ था सर, और इन्वायरमेंटल लॉ था। इन्वायरमेंटल लॉ, ठीक है, और फैमिली लॉ, जी ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट में अपील के लिए कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया हुआ है? सर 60 डे का दिया हुआ है उसमें। 60 है कि 90 है? सर सेक्शन 26 आई थिंक सर 26 कस्टडी ऑफ चाइल्ड और उससे रिलेटेड है। सेक्शंस तो नहीं गलत बता सकते आप, ठीक है। सर 90 डेज का ही सर उसमें 90 डेज दिया गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि साहब आपने हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि फादर इन लॉ इज आल्सो लाइबल टू मेंटेन द सन्स वाइफ, द सन हैज़ बीन डिसीज्ड, सन हैज़ बीन डाइड। तो कब होगा और किस एक्सटेंट तक होगा? सर फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस सर देते हैं अगर जो उसका बेटा है अगर उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है तो उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी से उसको मेंटेन करेंगे, और जब तक उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होती तब तक वो उस एक्सटेंट तक सर मेंटेनेंस का उसमें राइट दिया गया है डॉटर इन लॉ। अच्छा फाइनली एक और सवाल बस केवल, ठीक है। ए प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ बी, सॉरी सर, ए प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए सेड that B, it is not murder, it is accidental death, where this statement of A is relevant.
सर ए इज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस. A is prosecuted. A is the accused for the murder of B. A said that it was not murder, it was accidental death, where this statement of A is relevant. सर इन डिफेंस ए कैन डू सो. तो उसमें सर डिफेंस अगर ए लेता है, कुछ अगर एक्यूज है, तो उसमें सर उसका अगर सेक्शन देखा जाए सीआरपीसी में सेक्शन CRPC में नहीं, रेलिवेंसी तो है, एविडेंस से तय हो. सेक्शन 6 to 55 में अगर फिट होता होगा तो ही रेलिवेंट होगा. जी सर. नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, सर सॉरी सर. चलिए कोई बात नहीं, अभी बताएंगे. अब आप जा सकते हैं, ठीक है. अनिक जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर. बोल दो आप टीचर हैं तो कॉन्फिडेंस तो आप में भरपूर है, हेजिटेशन नहीं हुई है, वो तो कोई चीज़ झलक नहीं रही है आपको. जी सर. ड्रेस कोड, वॉइस और आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस, सिंपलिसिटी बढ़िया है आपका. फेस पे स्माइल भी थी, दैट इज़ गुड. एंड बेसिक कुछ बातें मैं और ऐड ऑन कराना चाहूँगा, ठीक है जी. एक तो आप सिवान डिस्ट्रिक्ट के बारे में और राजेंद्र प्रसाद, उनकी इंडिया डिवाइडेड है बुक के, ठीक है, थोड़ा सा उस पर देख लीजिएगा. और थोड़ा नॉलेज पे भी, खासकर जो आपने फैमिली लॉज और आप एनवायरनमेंट लॉ पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, तो उसमें तो और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे आपसे, बिकॉज यू आर टीचर, ठीक है. इन पर सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, टीपीए, फैमिली लॉ, आपने कितने सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट आपने फेवरेट सब्जेक्ट की लिस्ट में डाले जो हमारे पास आपका. जी सर. हो सके तो एक ही कर लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है, नहीं तो और वहाँ पे दिक्कत फंस जाएंगे. नहीं नहीं, पूछ लेते हैं वहाँ पे. मतलब पूछ बोर्ड लेते हैं. मेंबर्स पूछेंगे आपका फेवरेट क्या पढ़ गए हैं, आपका फेवरेट कौन सा है, तो आप कहें कि साहब पढ़े तो मैंने सभी हैं बट मेरा फेवरेट ये है. उस पर अच्छी सी कमांड हो तो आपका मोस्टली इंटरव्यू वहीं से हो जाता है. अगर आप 4 बताएंगे ना तो फिर हो सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन जाए और आप फंस जाएँ, ठीक है. और रिवीजन की थोड़ी ज़रूरत है अभी, ठीक है. हाँ, मतलब रिवीजन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, बट उसमें जैसे सेक्शन भी कुछ गलत हो गया, हाँ, तो उस पर प्लीज़ काम कर लीजिएगा. और बेसिक, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, जैसे वन नेशन वन इलेक्शंस पर, और थोड़ा सा इसके प्रोन्स कॉन्स देख लेना, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है. हालांकि आपने अच्छे बताए वो, और थोड़ा सा प्लीज़ उस पर कर लीजिएगा, ठीक है. बाकी एवरीथिंग इज़ गुड. और थोड़ा सा आपने रिवीजन अच्छा और कर लिया ना तो आपका इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा. क्योंकि आप पे ना कोई, मैं तो ये कहूँगा कि अब कोई इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है आपको, मॉक वगैरह. अब आप रिवीजन स्टडी करिए जितना हो सके. हाँ, क्योंकि आपके बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस, आई कांटेक्ट, सब कुछ एवरीथिंग इज़ गुड. बस नॉलेज की कमी है जो हमें थोड़ा सा लैग. हाँ, ड्रेस तो बहुत शानदार बहुत है. शानदार है. हाँ, ठीक है. आप कुछ पूछना चाहते हो? सर आप सारे क्वेश्चन सर पूछे थे. सेक्शन 11 रेजिडरी सेक्शन है, बचा कुछ वहाँ लिखा ना इनकंसिस्टेंट फैक्ट, तो प्ली ऑफ एलिबी हम रट लेते हैं कि प्ली ऑफ एलिबाई होगा, लेकिन प्ली ऑफ एलिबाई के अलावा और भी तो बहुत सारी चीज़ें. जस्ट इनकंसिस्टेंट बोल रहा है. यू हैव कमिटेड मर्डर, नो सर आई हैव नॉट कमिटेड मर्डर, दिस इज सुसाइड, दिस इज एक्सीडेंट, आई वाज नॉट देयर, तो वो सारे वहीं पे आते हैं, है ना. ठीक है. और कुछ पूछना है आपको? सर मतलब ड्रेस वगैरह सर सबको. हाँ, हाँ, और ये- सब एवरीथिंग हमने लिख दिया है इस पर, एक्सीलेंट है. सर और सर थोड़ा सा स्माइल भी तो मेरा ठीक था. हाँ, वो सही है, जो आपने रखा है भी वो वही भी रखिए. सही है बिल्कुल. कोई हिंदी में सर सवाल अगर हो तो मैं हिंदी में. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. कंफर्टेबल जिसमें हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. परमिशन ले लीजिएगा. हो सके तो चश्मे का ये चेंज करा लेना, थोड़ा लाइट मार रहा है. हाँ, कोई चेंज करके देख लेना. बाकी तो ये भी चल जाएगा. वो बट है, वो हर चश्मे में इस वाले में ना जो विदाउट फ्रेम वाला होता है, ये बीच वाला दिखाई देगा ही देगा. थोड़ा लाइट देख लेना एक बार आप मिरर के सामने खड़े होके ना. बाकी सब ठीक है, बस रिवाइज कीजिए अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स को, है ना. सर आपका क्वेश्चन सर फिजिक्स बांटे हुए हैं, तो रिवीजन तो सर होता है सर. नहीं भाई, देखिए एवरी डिग्री इज अपीलेबल. अपील इज ए स्टेचुटरी राइट. अभी सर ने पूछा था कहाँ पे 372 CRPC आप पढ़ेंगे, ठीक है. और रिवीजन तो तभी होता है जब देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ अपील, एंड रिवीजन का राइट पार्टी का नहीं होता है. दिस इज़ द राइट ऑफ द कोर्ट.